the chapter 6 of English Reader, class 5. The name of the chapter is Gulliver and the Little People. I slept very well for about 9 hours. When I woke up, I tried to stand, but I could not move. My arms and legs were very tired to the ground. My long, thin hair also appeared to be tied down. I could feel several thin pieces of string across my body from my neck down to the top of my legs. एक बार क्या हुआ, एक बंदा सो रहा था, जैसे ही वो उठता है 9 घंटे की नींद के बाद वो क्या देखता है कि वो ना हिल पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना अपने हाथ हिला पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है. फिर वो क्या नोटिस करता है, I could feel several thin pieces of string across my body from my neck down to the top of my legs. वो नीचे तक अपने पैरों को, ये क्या देख रहा है बंदा कि वो बंधा हुआ है, इसलिए वो हिल नहीं पा रहा है. The only part of my body on that I could move was my eyes. मेरी पूरी बॉडी में जो सिर्फ एक आंखें हैं जो मैं हिला पा रहा था. The sky was clear and the sun soon became hot. It must have been noon, so I could feel the scorching heat on my face. The bright light hurt my eyes. It was very painful to keep them open, and since I could not move my head, I had to close them. अब वो क्या देखता है कि आसमान बहुत साफ था, धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से जो उसकी आंखों में ना बहुत ज्यादा दर्द होता था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी आंख ही हिला सकता था. तो उसने इन द एंड क्या करा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली. I could hear a lot of noise around me. Many things were moving about, but I could not see what they were. When I opened my eyes, I was almost blinded by the light of the sun. तो जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो वो सब कुछ महसूस तो कर पा रहा था बच्चों कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कोई हिल रहा है, कोई शोर मचा रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पा रहा था. लेकिन जैसे ही उसने आंख खोली तो उसकी फिर से चल के कितने धूप की वजह से उसकी आंखें चौंधी आ गई. When I felt something move on my left leg, I moved very gently over my body towards my chin. I tried to look down as far as I could. There in front of me was a very small man. He could not have been more than 6 inches tall. तो जब क्या कहते हैं उसने ऐसे आंखें बंद करके वो होते हैं बच्चों, तो वो क्या महसूस करते हैं, कोई चीज उसके पैरों से लेके ऊपर चढ़ रही है. तो जैसे वो कैसे ना कैसे करके नीचे देखते तो कहता है, दिखता है कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो उसके ऊपर चढ़ रहा है, छोटा सा इंसान है जो उसके ऊपर चढ़ रहा है, और लगभग उसे 6 इंच का ही होगा. He was holding a bow with an arrow in it, and he had more arrows in a bag on his back. Then I felt at least 40 more little people climb over me. तो वो क्या देखते हैं, जो छोटा सा इंसान होता है उसके हाथ में जो होते हैं वो बो होता है, एक हथियार होता है, और फिर इतने ही देखते देखते ही 40 लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं. I was so surprised that I shouted very loudly and all the little people ran away. Many jumped to the ground, some of them were hurt badly as they fall from such a height. तो जब वो ऐसे डर जाता है तो चिल्लाने लगता है जोर जोर से बच्चे. तो इन द एंड क्या हुआ, जो 40 लोग थे वो उसके ऊपर से नीचे गिर गए और कुछ लोग हर्ट हो गए, कुछ लोग भाग गए. After recovering from the shock, most of the little men came back. One of them came nearby a tree and looked at it closely. He lifted his hand and eyes to show that I pleased him very much. Then he called out in a high and clear voice. The other repeated his word. I did not understand what they were saying. I began to feel more and more uncomfortable. तो अब जब वो जो नीचे गिर जाते हैं बच्चों, वापस ऊपर चढ़ते हैं, तो वो समझने की कोशिश करता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं. इतने में उनमें से एक बंदा कुछ बोलते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो क्या बोल रहे हैं. वो सब एक साथ उसके आगे पीछे बोलने लगते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा है. My arms and legs hurt because I could not move them. I tried hard to get free and managed to break some of the strings which had been tied to the stakes. My left arm was free. I pulled out hard on the left side of the head. It was very painful, but I chose some more stakes that held down my hair. Now I was able to turn my head around 2 inches. अब वो पूरी कोशिश करता है बच्चों की वो खुद को हिला सके, वो कुछ कैसे ना कैसे करके उन रस्सियों से आजाद हो सके. वो उस कोशिश की कामयाबी होती है. पहले एक हाथ उसका फ्री होता है, फिर दूसरा हाथ फ्री होता है. अब वो थोड़ा सा अपना जो फेस होता है वो देख सकता है, 2 इंचेस तक मोड़ सकता है. A little people had run away again while I was trying to free myself. I tried, but I wasn't able to catch even one of them. Suddenly, I heard someone shout an order in a loud voice. At once, about 100 arrows shot through the air.
एट मी। तो अब क्या हुआ, जैसे वो इधर होते तो सब लोग डर जाकर भाग रहे होते। इतने में क्या हुआ बच्चों, उनमें से एक आदमी बहुत तेज चिल्लाकर एक ऑर्डर देता है। वो देखकर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन इतने में वो जैसे उनकी बात सुन रहा होता है, इतने में 100 ऑफ एरोज जो होते हैं वो उसके ऊपर आने लगते हैं, क्योंकि वो उस पर हमला करने लगते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट फील द एरोज दैट गॉट स्टक इन द क्लोथ्स, बट आई फेल्ट दोज दैट pricked my face and my left hand. वो these felt like a sharp needles. अब जो उसके कपड़ों पे तीर लगे हुए होते हैं वो तो बच्चों से नहीं फील होते, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो उसके फेस पर हैंड पे जो फ्री जो क्लियर रहते हैं, जिसमें कोई फैब्रिक नहीं होता, उसमें जो लगता है वो बिल्कुल निडल की तरह से चुभ रहे होते हैं। I screamed with pain, covered my face with my left hand, and tried to break the strings. I wanted to break free from the little man shot more arrows. Some of them tried to dig their spears into me. Luckily, my jacket was made of very strong cloth. Their spears were not sharp enough to go through it, so most of them did not hurt me. तो अब जब क्या कहते हैं, उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो अपने जो दो हाथ को वो फ्री करता है, अपने चेहरे पे रखता है ताकि वो उसे दर्द ना हो, वो उनसे बच सके। लेकिन फिर से बहुत सारे तीर उसके ऊपर आते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा है मेरे जो ये जैकेट है ये इतनी मोटी कि मुझे उनके तीर फील नहीं हो रहे, बट उसे फिर भी बहुत ज्यादा काफी जगह दर्द हो रहा होता है, क्योंकि जिस वजह से वो अपने फेस में हाथ लगता है। लेकिन जो वो एरोज वाला लग रहे थे जो जैकेट पे लगता है, उससे उसे इतना फिर भी दर्द नहीं हो रहा होता। I decided to lie still till night. Despite their attack, as soon as it was dark, I would be able to escape. My left hand was not tied to it, so I thought it would be easy to myself get free. Once I was free, I was sure that I could beat the little soldiers who were left and watch. But my plan was not needed. When the little people saw that I was lying still, they stopped shooting. जब तो अब मैंने क्या, उस बच्चों ने क्या सोचा, मैं एकदम स्टिल बिल्कुल सीधा हो जाता हूँ, प्रिटेंड करता हूँ कि मेरे को दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल सीधा होता हूँ, इनको मारने देता हूँ, और उसके बाद जब शाम होगी, थोड़ा टाइम निकल जाएगा, तो मैं फ्री हो जाऊंगा इनसे, मेरे हाथ तो खुले हुए हैं, तो ये ईजी होगा मुझे सब कुछ निकालने से। लेकिन मेरा प्लान कामयाब नहीं, क्योंकि वो उन लोगों ने बंद कर दिया आगे वो बचाना। अभी हमने इसका इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा है, आगे हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू।